मानिनी सुनाई दे रहा है? नहीं है वो मीटिंग। मैम देखो हम तीन है, जीत है, रिद्धि है, शिविका है, टीआर। Recording start होगी. Okay. Now we are doing one more question of break even. The data which is given to you is, see, they have given average price per customer. They have given average price per customer $10. Then they have given variable cost per customer which is $2. Then they have given weekly overheads. What do you mean by overheads? Fixed cost. Yeah. So weekly overheads means this is fixed cost. $400. You should know that variable cost changes in proportion to the output, whereas variable cost has no effect. Fixed cost is not related to output. It is fixed. It is not related to number of units produced. So weekly overhead is $400, which is fixed cost. And they have also given number of customers, which is 60. Now this is the question, and now they are asking you to make a break-even chart, also asking you to find the break-even point. So before making the chart, see, with the question they can ask you what is the meaning of fixed cost, what is the meaning of variable cost, that theoretical part also. Okay? So before making anything on the graph, point number 1 which you have to do for working is selling price minus variable cost gives you contribution less fixed cost gives you profit. Make this first. Okay, and then make this for 1 unit. Make this for number of customers 60. So make this for 60 units. And the last one we'll make for break even point. So selling price, that is revenue for 1 unit, average price per customer is 10. So for 1 unit it is 10. Variable cost is 2. 10 minus 2 contribution is 8. Fixed cost and profit. For 1 unit, there is no point writing fixed cost because I'm not calculating profit for 1 unit. So just write it directly. The fixed cost, that is weekly overhead 400, write it for 60 units. 60 units. Okay? Now 60 units into 10. So for 60 units, your sales revenue is 600. Variable cost for 60 units, 60 into 2, 120. Contribution 60 into 8. How much is it? 480. 480. Or you can do it like this also, 600 minus 120, 480 is your contribution. Less fixed cost, 400. So profit is 480 minus 480. Okay? Now we have to find out break-even sales kabhi hoga. That is, there is no profit, no loss point. So simple sir, we know that break-even mein there is zero profit, zero loss. So here 0. Fixed cost cannot change. So it will be 400 only. चाहे तुम 1 unit बनाओ, चाहे तुम 1000 unit बनाओ, fixed cost remains fixed. So it is 400. And now I also know that 400 minus 400 will be 0. Contribution में से fixed cost less करते हैं तो profit आता है.
एंड आई नो 400 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में यदि आएगा तभी तो प्रॉफिट 0 होगा. 400 माइनस 400 इज 0. ओके, सो कंट्रीब्यूशन 400 मुझे मिल चुका है. Now if I want to know the number of units of break even, I can. How do I do it? 400 is total contribution divided by, for 1 unit the contribution is 8. So 400 divided by 8. 50 यूनिट पे ब्रेक इवन हो रहा है, मुझे बिना किसी फॉर्मूला के मिल चुका है. तो ब्रेक इवन पॉइंट इज 50 यूनिट्स. कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन का लो. कंट्रीब्यूशन अपॉन डिवाइडेड बाय 8 इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो मुझे 50 यूनिट्स मिल गया. अभी 50 यूनिट्स में सेलिंग प्राइस मुझे देखना है ब्रेक इवन सेल्स कितनी है. तो 50 into 10 500 एंड देन वेरिएबल कॉस्ट ब्रेक इवन पे वेरिएबल 50 into 200. क्रॉस चेक भी कर लो. 500 minus 100 is 400. नाउ व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या आता है? नंबर ऑफ यूनिट्स. यहाँ पर कस्टमर है तो एक्स एक्सिस पे आया नंबर ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, वाई एक्सिस पे हमेशा रेवेन्यू एंड कॉस्ट. ठीक है, उसके बाद मैंने बोला सबसे पहला काम क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लॉट कर दो. स्टेप नंबर 1. तो फिक्स कॉस्ट प्लॉट करो. फिक्स कॉस्ट 400 पे है तो 400 पे हम फिक्स कॉस्ट प्लॉट करते हैं. यूनिट 60, दैट इज 60 यूनिट्स तक मेरे को बनाना है. टोटल 60 यूनिट्स तक. 60 यूनिट्स का ही क्वेश्चन है. ठीक है, सो दिस इज माय फिक्स्ड कॉस्ट. जो कि 60 यूनिट्स पे आ गया. ओके, आफ्टर फिक्स कॉस्ट स्टेप नंबर 2 क्या बनाना है मुझे अभी? सेल्स या रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू जो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और 60 यूनिट्स का रेवेन्यू 600 है. ये बीच वाली लाइन का बनाते हैं. तो 60 पे 600. ओके, तो 60 वाला ये वाला पॉइंट लिया मैंने. 60 पे 600. So this is my revenue या sales, total revenue या sales. ठीक है, अभी टोटल कॉस्ट है. what will I do next? टोटल कॉस्ट. So next में मैं बनाऊंगी टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, वो हमेशा फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होता है. मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट इज 120 प्लस फिक्स कॉस्ट इज 400. So it is 520 is my total cost. अच्छा, हाँ टोटल. तो 60 पे 520. So this is my लॉस. total cost. Total cost which is equal to total fixed cost plus total variable cost. ठीक है, एंड मुझे पता है कि मेरा ब्रेक इवन यूनिट्स 50 आया है और ये प्रूव भी कर रहा है. देखो एग्जैक्टली 50 पे मुझे यहाँ पे पॉइंट मिला है. सो दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट. दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट. दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट. बिफोर दिस पॉइंट वॉट एवर दिस पोर्शन इज लॉस. इट इज लॉस. एंड आफ्टर दिस पॉइंट जो भी एरिया है दैट इज प्रॉफिट. और मैं इस एरिया को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोल सकती हूँ. हम वेरिएबल कॉस्ट भी प्लॉट करके बताते हैं. वेरिएबल कॉस्ट 120 बताना है. हाँ, वेरिएबल कॉस्ट प्लॉट करना है. इसमें वेरिएबल कॉस्ट इज 120 फॉर 60 यूनिट्स. इट इज 120 जो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा और 60 का 120 पे आ जाएगा. So this is variable cost. 60, हर चीज 60 यूनिट्स लेके करना. 60 यूनिट्स बिकॉज क्वेश्चन हमको 60 यूनिट्स का गिवन है. तो 60 यूनिट्स लेके और ये सब चीजें प्लॉट करना. ओके, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये बोलना है
कि आप देखो, हम ये फॉर्मूला बोलते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब जस्ट फॉर योर नॉलेज यू सी हियर, ये है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इसके ऊपर ये है टोटल कॉस्ट. तो मतलब यदि मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का पॉइंट यहाँ मिल रहा है, टोटल कॉस्ट का पॉइंट यहाँ मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस जो है दैट इज ऑफ फिक्स कॉस्ट, दैट इज दिस गैप. This gap is fixed cost, which will be equal to this gap. 520 minus 120 is 400 and 400 minus 0 is 400. Okay, यानी कि ये वाला जो एरिया ये भी फिक्स कॉस्ट है. सो हम कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ पर मुझे ये पॉइंट मिला 520 पे, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये कितना है 120. तो मैं ये बोलूंगी 520 माइनस 120, तो कितना मिला 520 माइनस 120 is 400, which is plotted here as fixed cost. So the gap between variable cost and total cost is fixed cost. 520 माइनस 120 400 आ रहा है, और ये वाला गैप भी देखो 0 से लेकर यहाँ तक 400 ही है. So hence we can prove that total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. अभी एक और चीज है which they can ask you in exam, are break even charts accurate forecast? No, they are not. They are only a guide, they are not accurate forecast. वापस से मैं बोलती हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला याद करो, एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट माइनस द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट. एंड break even is only a guide and not an accurate forecast. Accurate forecast नहीं है, it is just a guide. अच्छा, एग्जाम में they also ask you limitations. They ask you limitations of break even. So limitations क्या हो सकते हैं? We are assuming that fixed costs do not change. बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हो. एक वाइट मैम, it does not take into account recession also नहीं लेता है क्या recession हो सबको? एक मिनट. नहीं, वो तो cash flow issue. Okay, just write down. That's okay. लिख लो limitations of break even. First limitation, they assume that selling price is same at all levels of output. जो कि करेक्ट नहीं है ना, यदि बल्क में सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस चेंज भी होती है, हम डिस्काउंट दे देते हैं. तो लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन इज दे अज्यूम दैट सेलिंग प्राइस इज सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट. सेकंड अजम्पशन व्हिच दे मेक इज फिक्स कॉस्ट भी फिक्स रहती है. दे अज्यूम दैट फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट दे डू. सो सेकंड लिमिटेशन है दे अज्यूम दैट fixed cost do not change but after a certain level of output
दे डू। मान लो आपने एक कोई बहुत बड़ी फिक्स कॉस्ट मीन्स जैसे कि आपने बड़ी फैक्ट्री डाली है तो रेंट तो बढ़ेगा ना, फैक्ट्री मशीन्स का इंश्योरेंस भी बढ़ेगा ना। यदि आप और ज्यादा प्रोडक्शन करते जा रहे हो, आउटपुट इंक्रीज करते जा रहे हो, तो उसके लिए तो आपने यदि एक फैक्ट्री लिया नया लिया है तो उसका इंश्योरेंस एक्सपेंस भी बढ़ेगा, उसका रेंट भी बढ़ेगा, तो दे डू। उसके बाद यदि मान लो कि मेरी एक बड़ी कंपनी है जिसमें बहुत सारी चीजें बन रही है, फॉर एग्जाम्पल इट इज लाइक सोप्स बन रहा है, शैम्पूज बन रहा है, टूथपेस्ट बन रहा है, ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, so it is very difficult to allocate fixed costs accurately if more than one product range is produced. That is a limitation. It is very difficult किसके कौन से प्रोडक्ट पे कितनी फिक्स कॉस्ट डालूं, that is also a problem. It is very difficult to allocate fixed cost accurately. If more than one product range is produced. That is टूथपेस्ट का कितना फिक्स कॉस्ट है, सब एक ही फैक्ट्री में बन रहा है, शैम्पू का कितना है, वो फिक्स कॉस्ट में अपोर्शन कैसे करूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एलोकेट. देन द लास्ट वन विच यू कैन राइट इज, हम लोग जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, देखो हमारा स्टार्टिंग ही ब्रेक इवन का कैसे स्टार्ट होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट. बट जरूरी नहीं है ना दैट ऑल आउटपुट इज सोल्ड. देखो नॉट ऑल output will be sold. There may be rejections, breakage and unsold stock. There may be rejections, breakage and unsold stock. Okay, so these are the limitations of break even. ले लो मैं रखने उठा. बट एक जो एडवांटेज होता है ब्रेक इवन चार्ट का, दैट इज इट हेल्प्स इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस. इट मतलब एक पिक्टोर वी कैन से दैट इट इज अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो इट हेल्प्स इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस and it helps us to know what is the break even sales. एक मिनट, ब्रेक इवन में आप ये भी बोल सकते हो, इट हेल्प्स अस मेक अस डिसीजन रिगार्डिंग कॉस्ट बिकॉज वी नो व्हाट आर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. तो कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजंस भी हम कर सकते हैं. Okay, children, I am sending you few pictures and I am giving you 1 hour, flat 1 hour. ठीक है, वो लर्न करो, लिखो और मेरे को वापस भेजो because it is very very important for your exam. तो मैं निकल रहा हूँ. निकल गया मैं.